this is going to be a big rant, and I just have to say it, but this is for all those irritating people who are like, oh my god, I so funny, it's such a nice weather. तुम्हें शायद समझ नहीं आती कुछ बातें, but I'm sorry, it is the most inconvenient weather ever. Like I personally, तुमने पैरासाइट मूवी देखी है, वो मूवी के बाद से स्पेशली मुझे इतना ज्यादा और रियलाइज होने लग गया, मैं इतना ज्यादा ऑब्जर्व करने लगी हूँ और चीजों को, but it's just that you think that you're like this entitled person sitting inside your car, sitting inside your room, and sitting inside wherever you are and like enjoying the so-called weather. Oh, chalo garam coffee peete hain, awesome, bada acha hai, whatever. Do you know the struggle that people in this world are having when it's raining? Like it is so sad. मेरे ड्राइवर अंकल बेचारे कैसे उड़ी मार मार के आज गए हैं वो घर पे, और वो इतना दूर रहते हैं. It is so inconvenient. उनकी ट्रेन शायद बंद हो जाए. It is just like you see people walking, उनका पूरा आर्म गीला हो चुका है, सब रोड्स बंद हो चुके हैं. There are like trees falling everywhere, accidents happening constantly, and in a country like ours, जहाँ पे which unfortunately बेरोजगारी ज्यादा है, there are people of all ages, like from extreme बुजुर्ग्स to little बच्चास doing Swiggy Zomato stuff, and like they're playing with their lives for like what 20-30 rupees का convenience fees that they get for giving whatever things that you're garam pakhali that you're probably ordering, and वो बेचारे कैसे भीग रहे हैं. और and it's like struggle doesn't even have like an age bar. I think like no matter what age you are, like this kind of struggle is pathetic. And I mean I myself am a very entitled person. मैं गाड़ी में घूम रही हूँ, मैं अपने रूम में आराम से बैठी हूँ, and I'm super grateful for that. But मुझे इतनी हमदर्दी होती है लोगों के लिए when I see them struggling in this weather, and it's all the weather. And I get it, like people are going to be like, oh my god, इतनी water shortage है, अच्छी बारिश हो रही है और ये लड़की ये सब बोल रही है, and all that. I get it, I'm not saying मुझे रेन से प्रॉब्लम, मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम है जो रेन को रोमांटिसाइज करते हैं. तो हमारे देश में मतलब बिफोर अ रोड इज बिल्ट इट ब्रेक्स अगेन एंड देन इट हैज टू बी बिल्ट अगेन बिकॉज ऑफ व्हिच देयर आर अ लॉट ऑफ puddles, whatever, everything that happens. मतलब how hard is it to drive in that those kind of roads? And it's like अभी भी मैं आ रही थी तो इतना सब कुछ अंधेरा हो जाता है, तुम्हें आगे कुछ दिखता नहीं है, no matter what lights you're putting, everything. ऐसा मैं लिटरली बस करके गई एक रोड के ऊपर से, सारा पानी साइड में फ्लैप हो गया. मैं राजा सॉरस में बैठी हूँ क्या, मैं ऐसे मुझे फील हो रहा था. बट इट इज जस्ट वेरी इनकन्वीनियंट. मतलब मैं अभी नॉर्मली ऐसे अपने बेड पे आराम से बैठी हूँ, उन लोगों के घर में क्या जिनकी छतें इतनी टपकती है सीजन की वजह से कि उनका बेड गीला हो जाता है. Everything is just chipped, and then there are these people with the audacity, this nibba nibby people walking hand in hand, and now people are gonna be like, oh, tu to single hai tune. There are people who have the audacity to tell me that, oh, you've just never danced in the rain and kissed in the rain. You know what, I don't want to kiss in the rain. Like I would rather kiss in a nice closed quiet room in the comfort of my privacy and actually have that moment and enjoy it, and not be like, ye kya tapakra mere back ke upar in that special moment. I'm sorry, but like people just saying that, and there are people walking hand in hand. I'm sorry, like I don't want to, unless like I'm physically in danger and I'm physically like gonna fall or something because I am a clumsy person, I would not want anybody to touch me when there is rain around. It is so muddy, it is so disgusting, it's chipchipa, and you are romanticizing that, saying कि ये weather अच्छा है, मुझे पकौड़े खाने, shame on you. And I genuinely feel like कि रेन को अगर होना, मुझे पता है पानी की शॉर्टेज है, रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से रेन को कभी मतलब रात वाले टाइम पे होना चाहिए, जब सब सो रहे होते हैं. फिर सुबह उठ के देखी जाएगी जहाँ पे जो झाड़ गिर रहा है, जो पानी भरा हुआ है, सब फिर सुबह हम फिगर आउट करेंगे. बट सुबह सुबह जो बारिश होने लगती है कि मतलब पूरी रात नहीं गिरेगी, लेकिन लाइक सुबह 4 बजे से लेकर फिर 7-8 बजे तक बारिश होती रहेगी. पीपल हैव टू गो टू वर्क एट दैट टाइम. लाइक यू रियली थिंक somebody would enjoy going out to work, like they're properly dressed up, they're like nice and neat, and then they go out and there's a fucking splash on their clothes because some stupid car just splashed water on them or it just suddenly started pouring. And imagine, I mean, people जो अपना छाता भूल जाते हैं, like उनको कितनी तकलीफ होती है अगर वो तैयार होकर निकले हैं. तो imagine if there is an old uncle जिनको वैसे भी दिखाई नहीं देता, वो अपना चश्मा घर पे भूल गया और वो ड्राइविंग कर रहे हैं और उनको सामने कुछ नहीं दिख रहा है बिकॉज बारिश इतनी हो रही है, no matter कितना फास्ट उनका वाइपर चल रहा है. कुछ मतलब इस वेदर को आदमी की कंसिडरेशन ही नहीं है मेरे हिसाब से. मतलब सुबह के टाइम पे काम पे आदमी निकलता है तभी बारिश हो रही है, काम से आदमी जब ये वापस आता है घर पे तभी उसको लगता है कि यार अभी ऐसे आराम से घर पे जाएंगे, ट्रैफिक में फंस जाना है बिकॉज इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, सब जगह गंदा गंदा सब कुछ है, ऊपर से फिर घर आओ, इट्स लाइक यू माइट हैव टू टेक अ बाथ बिकॉज हाउ डर्टी यू माइट हैव गॉटन एंड एवरीथिंग. इट्स जस्ट sad. It is like पूरा दिन वाला टाइम भी जो होता है ना, इतना डल हो जाता है. Like it's like probably just 2 PM and you feel like, oh my god, it's 7 PM and you don't feel like working because it's like, छी ये क्या weather है, अभी तो सोने का टाइम हो रहा है, ऐसे फील हो रहा है. So you get what I'm saying? It's very inconvenient as a weather. Like ठीक है, I'm saying sometimes it's fine and like we can figure it out, but it can't be raining like this and ruining everybody's mood, and you cannot romanticize this weather. I really am against people who feel like कितना, imagine कोई ambulance में होगा, बारिश की वजह से वो hospital. Also let's not forget about the frizz. Yes, like sometimes your hair are hairing, but like because of the rain it stops hairing. आप कोई अच्छी सी hair style करके निकला, and this is gender neutral, okay? It is not just for women. सबके बाल खराब होते हैं इस टाइम पे, and it is very like your clothes get dirty, your car gets dirty. Imagine गाड़ी देखिए कभी, मतलब कितनी ऐसे छींटे वाली stains आती हैं गाड़ी के ऊपर जिसकी वजह से वो गंदी लगने लगती है. सब ऐसे, if you have wooden doors in your house, they get swelled up. एक तुम्हारे कपड़े कितने टाइम के लिए सूखते नहीं है. Do you know how hard that is for a person who has a lot of laundry because of how much they work out? Like you don't get it. I mean, तुम बाल धो के निकले हो घर से और बारिश हो गई और वापस तुम्हारे बाल गंदे हो गए. तो you get what I don't see. It's not the rain. I'm again and again telling, I get it, it's a natural phenomenon and it has to happen, otherwise like we'll only die. But it's just a matter of people just finally accepting that it is a hard weather. This is like people are like Mumbai ki barish, this that whatever. I get it, dude. It is beautiful at times. Like मैं मना नहीं करूँगी, कभी कभी मजा आता है, whatever it is. But that is like what, once or twice in a month maybe, max to max. Like उससे ज्यादा तुम्हें really लगता है कि अगर ऐसी भोंगी बारिश रोज हुई
तो रोज लोग एंजॉय करेंगे तुम्हें लगता है? फिर वो तुम मिले वाला सीन हो जाता है. ब्लडी इमरान हाशमी, आई एम टेलिंग यू, इट्स जस्ट दीज सॉन्ग्स दैट मेक यू फील लाइक ओ दिल बात एंड ऑल दैट. नो, इट इज वेरी इनकन्वीनियंट. लाइक अगर 4-5 दिन लगातार बारिश पड़ी तो मेरे आई डोंट थिंक दुनिया में कोई भी ऐसा है जिसको वो एंजॉय होता होगा, अनलेस दे आर अनएम्प्लॉयड, अनलेस दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू, दे हैव नो प्लान्स. आई फील लाइक रेन इज ऑल्सो एंजॉयड बाय पीपल हु डोंट हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स. कि अगर तुम्हें ऐसा है कि घर जाके तुम्हें कोई काम नहीं है अगर, तो तुम्हें लगेगा कि ठीक है आज इतना लेट होता है, घर जाके नहा लेंगे, जब खाना चीजें बना लेंगे, खा लेंगे, whatever. बट जो लोग शेड्यूल पे काम करते हैं ना, जिन लोग का रूटीन सेट होता है रोज का, उनके लिए इतना इनकन्वीनियंट हो जाता है कि इमेजिन लाइक तुमने सोच के रखा है तुम कल सुबह ये करने वाले हो, बट उसके ऊपर जेन्युइनली पानी फिर रहा है बिकॉज पानी गिरे जा रहा है. लाइक इन दैट सेंस, लाइक यू गेट इट, इट्स वेरी इरिटेटिंग ऑल्सो. समटाइम्स इट्स नॉट इवन रेनिंग बट इट्स जस्ट अ वेदर, लाइक दिस ग्रे वेरी डार्क डल वेदर. तुम ऐसे रोड पे चल रहे हो, कहाँ से कौन सा पानी टपका है अभी पता नहीं चलेगा बिकॉज जस्ट थोड़े टाइम पहले बारिश हुई थी. और अदर ऐसे भी कई बार होता है कि पूरी रात सपोज बारिश गिरी है, लेकिन उस रात वाली बारिश की वजह से पूरा मॉर्निंग खराब हो चुका है. आई नो आई एम सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग राइट नाउ, जिस सेट की रात को नीचे सुबह नहीं होनी चाहिए, बट यू गेट आई एम सेइंग व्हाट. एंड माय ओनली point here is people need to start accepting that this is not a good weather. It is a very inconvenient and problematic weather. It is dangerous. It is very, and I love the water. Okay, I am a water baby completely. मेरे को बहुत अच्छा लगता है like water bodies and मेरे को पानी से बहुत लगाव है, मैं मना नहीं कर. But मैं इस माहौल की बात कर रही हूँ. Like लोग ना समझ नहीं रहे. I don't hate the rain. I don't hate the water. I hate people romanticizing it and people saying it is not what is a problem is a problem. You have to accept it. It's also like imagine अभी सुबह आदमी को काम पे जाना होता है, कहीं जाना होता है. Like imagine nature only doesn't want us to निहार nature sometimes. I feel मतलब तुम इंडोर बैठ के कितना नेचर निहार लोगे. जिन लोगों को सुबह ऐसे वॉक जाने की आदत है, रन जाने की आदत है, कहीं पे भी अगर उनको बाहर जाना है वैसे नहीं जा पाएंगे. मतलब नो मैटर हाउ रेन फ्रेंडली योर शूज आर, यू आर बाउंड टू स्लिप. आई फील सो दैट लाइक कंप्लीटली केटर्स इट आउट. मतलब कपड़े सूखते नहीं है, कितने सारे भाजी होते हैं जो अवेलेबल नहीं होते हैं इस वेदर में, सब खराब जल्दी हो जाता है. एवरीथिंग गेट्स लाइक ऐसे वियर्डली ऐसा फंगसी वेरी सून. एंड जस्ट इमेजिन लाइक इट्स जस्ट सो इनकन्वीनियंट. लाइक काफी चीजों से हमारा एक्सेस ही छूट जाता है, काफी चीजों से हमारा मन चला जाता है कि हमें कुछ करने का मन हो रहा है, अंदर से मुझे कुछ सपोज खाने का मन हो रहा है, एंड इट बी लाइक कि छोड़ यार इस बारिश में कौन जाएगा, ऐसे फील होने लगता है. तुम्हारे प्लांट्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं कितने ज्यादा. इट्स लाइक नेचर ओनली वांट्स टू डिस्ट्रॉय नेचर आफ्टर अ पॉइंट. इट इज दैट बैड. मतलब इसीलिए मेरे को इंद्रजीत के लिए बहुत रिस्पेक्ट है. मतलब वो भले कितना भी बड़ा ऐसे असुर होगा, ही वॉज द स्मार्ट गाय. आई थिंक ही गॉट. बट इट इज लाइक इमेजिन पानी अंदर कभी कभी आने लगा, लाइक ऑल द इंसेक्ट्स एंड ऑल दे स्टार्ट कमिंग इनसाइड योर हाउस बिकॉज उनको भी प्रोटेक्टेड रहना है वैसे करके. लाइक सबका मूड खराब हो जाता है ऐसे तुम समझो. आई रियली डोंट थिंक लाइक इट ब्लडी इमरान हाशमी एंड बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स इज व्हाट हैज रोमांटिसाइज्ड रेन, बट इट इज नॉट गुड. इट इज वेरी बैड.